It's been quite a while I've done motovlogging, and today is a Saturday, I believe the 4th of June, and using the Insta360 after a long time as well, and talking to you guys basically after a long while. It's already 8:53 and I have to reach my office by 9:30. I don't have the luxury of a Saturday Sunday week off job, rather a Saturday. Sunday is my off, Saturdays काम पे जाना पड़ता है भाई. Though this mount is always very sturdy, but it always keeps me on the edge, like डर लगा रहता है, especially on Ubar-Khawar roads, which UP offers by default. Anyways, these are not the topic that I'm talking about. The main topic that is around the 250 segment power band. Now, ever since I have uploaded this video on the V-Strom 250, a lot of you have asked me different questions around that, and a lot of you are still in a kind of dilemma that whether you should buy the V-Strom 250 or you should still go for the KTM Adventure 250, or maybe the Himalayan, or maybe the Pulsar the Pulsar 250. दो मैंने ऑन रोड पल्सर 250 बस एक बार ही देखा है अभी तक, पता नहीं ज़्यादा बिकी है या नहीं. Though I have been patiently replying to all the comments and everything, but still एक guidance video sort of बना दिया जाए तो maybe you guys would benefit out of that. Now the thing is that यहाँ पे अभी जो मैं बोलूँगा ना, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने प्रीवियस कई सारे व्लॉग्स में मैंने बता रखा है, so it might sound a bit repetitive to you, but फिर से बता ही देता हूँ for the benefit of all you guys. The thing is that when it comes to the Indian market, like you see these Splendors and all those bikes, why are they selling so much? Because Indian people are first of all concerned, the first thing, mileage. कोई भी बाइक उठा लो, आप हाबूसा लेके खड़े हो जाओ ट्रैफिक पॉइंट में, वहाँ पे भी लोग आपको आके यही पूछेंगे भैया कितना देती है. भोपुरा मोड़ पे इन दिनों ट्रैफिक पुलिस तो दे रहा है, बट देन अगेन ऐसे नमूनों के वजह से बिना कारण हॉर्न बजाए जाते हैं. मैं ऐसा को साइड नहीं देता हूँ, रादर उनके सामने मैं जाके और स्लो हो जाता हूँ. जैसे क्या हुआ, मैं फालतू के मतलब हॉर्न दिए जाते हैं लोग. जब सामने गाड़ी है, ट्रैफिक है, पै 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 करके हॉर्न बजाए जाएंगे. एंड मैन इट्स टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी अराउंड द 40s मार्क. अभी कितना ही टाइम हुआ है, सुबह के 9 बजे. हाँ, तू हॉर्न दे, मैं तेरे को और ब्लॉक करता जाऊँगा. बजा हॉर्न. So mileage is the first and foremost question, and that's why you see the 110 to 150 cc, even 200 band of motorcycles selling in volumes rather than those 400s, 500s and super bikes. तो भूल ही जाओ, Indian weather में क्या ही चलाओगे. और regarding the super bikes, since I mentioned, let me just tell you that since I've worked with super bike rentals and I've ridden bikes like the Ducati Scrambler, the Harleys, the Busa, all these bikes शौक के लिए आप दे सकते हो, या एक दिन रेंट पे उठाओ, चलाओ, शौक पूरी कर लो. Don't go for ownership of these bikes if you ask me, because Indian weather is just not for those bikes. आपको हार्डली इस टाइम पे, इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में कोई सुपर बाइक आपको नहीं दिखेंगे रास्ते पे. So super bikes is good to see, good to watch, good to maybe experience. अगर पैसे ज़्यादा हो गए तो एक्सपीरियंस कर लो जाके एक दिन रेंट पे उठा के. वो भी महंगा पड़ेगा आपको, डिपेंडिंग ऑन विच सुपर बाइक यू आर गोइंग फॉर. द वे द ग्लोबल वार्मिंग इज़ हैपनिंग, टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे. Summing all these factors, I would say, I mean, why? Let me answer this question also. Why you haven't seen me progressing from a 250 to maybe going back to a 400 or a 500 cc? Because 250 cc में ना जो पावर बैंड है आपका, वो यूजेबल पावर बैंड है. चाहे वो कोई भी 250 ले लो, आप जिक्सर ले लो, यामाहा ले लो, more or less every one of them revolves around the 30 bhp mark. तो अभी मैं जो चला रहा हूँ, मेरे यहाँ से हीट आ रही है ऊपर,
and the moment if I have to stop in a traffic situation or it's a stop and go traffic, लेफ्ट हैंड साइड से जो खतरनाक हीट आती है ना ऊपर, ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था जो मैंने रवि के साथ कोलैब में किया था, लाइक रेव्स राइडर के साथ। नहीं देखे वो वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट आपको बहुत सारी जानकारियाँ एक वीडियो में मिलेंगे, तो वो वीडियो देख लेना, आई बटन पे आ रहा होगा ऊपर। कमिंग बैक टू द 250cc पावर बैंड, नाउ द 250cc इफ यू आस्क मी हैज़ एडेक्वेट पावर, लाइक 30 bhp इज़ गुड इनफ। मैंने ये बाइक लेके लद्दाख कर ली, आपको पता ही है। ग्वालदाम इज़ नॉट वेरी टेक्निकल और ट्रिकी अ ट्रिप, बट देन अगेन करने के लिए कर लिया। दिल्ली कोलकाता कर लिया, कहीं पर भी एक जगह पे भी मेरे को ये महसूस नहीं होगा यार 30 bhp है, झेल नहीं पाएगी है, मेरे को और ज़्यादा bhp चाहिए। आई नो मोर द बेटर बट नॉट ऑलवेज। कैसे चला रहा है ये ट्रक ड्राइवर, अल्लाह दिन दहाड़े पी रखी है क्या? देखो सब बेवड़े की तरह चला रहे हैं। ऐसे गाड़ियों से, नमूनों से दूर रखो, डिस्टेंस मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग। ये कहीं भी घूम सकता है, किसी भी तरह मुड़ सकता है, किसी भी दिशा में। इनको दिशा पता नहीं, आई मीन दिशा पता नहीं है, सॉरी पीजे। ओके जब ये सुजुकी SF250 आई तो लॉट ऑफ कमेंट्स केम इन के मेरे को ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक आप कैसे लोगे, मतलब कैसे डिसाइड करोगे मेरे को इस बाइक के साथ जाना है, मेरे को ये लेना है, मैंने इस पे लॉक किया है, मेरे को और कोई बाइक नहीं चाहिए, यही चाहिए। जैसे मान लो मैंने जब C90 बेच के जिक्सर SF250 में गया और फिर मैं उसको बेच के मैं इस पे आया, मैं क्यों नहीं गया 390 एडवेंचर पे? मेरा कारण क्या था? मेरे को एज आई टोल्ड यू 250 पावर बैंड इज़ परफेक्ट फॉर मी, एडेक्वेट पावर, यूजेबल पावर एंड देन द माइलेज, सो वो दोनों मेरे को मिल जाता है इसमें। अब थोड़ा सा 360 को ऑन किया जाए, ऑन हुआ भी? आई डोंट थिंक हुआ है। मैं ज़्यादा ध्यान इस पे दूँ ना तो वो हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। दिस एरिया इज़ वैसे ही नोन फॉर एक्सीडेंट्स। थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट आई कुडंट स्विच इट ऑन, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। ग्लव्स खोल के करना पड़ेगा, यही बाकी रह गया क्या? लगता नहीं है इसका आज फुटेज मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स क्रिएटिंग द ड्रामा। बेचती इंस्टा 360 वाली बेचती इन 360, बट अभी 9:11 हो गए तो पहुँचना है ऑफिस। कमिंग बैक टू द टॉपिक विच आई वाज टॉकिंग ऑन, दैट इज़ द पावर बैंड एंड हाउ टू चूज़ योर मोटरसाइकिल। तो अगर आपको मोटरसाइकिल लेने की आप सोच रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर बजट, कि मेरे को इस बजट के अंदर रहना है या मैं जा सकता हूँ, यहाँ तक खींच सकता हूँ एंड ऑल दैट। Once you have shortlisted your motorcycles, check for the videos on YouTube. So it's the same day and the continuation of the vlog is happening after my office. सुबह को ये 360 ऑन नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें बैटरी डेड थी, तो चलते हैं व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली होके घर जाना पड़ेगा आज। The advantage of these 360 cameras is कहीं पर भी टिका दो कैमरे को किसी भी एंगल से, आपको बाद में उसको एडिट करके घुमा लोगे। और ये भी मेरा ऑफिस हुआ करता था एक टाइम पे HCL,
बट अब ये खेल ना रहा। एंड दिस बिल्डिंग इज़ अपेरेंटली हॉन्टेड। मेरे साथ हॉन्टिंग वाला एक्सपीरियंस हो रखा है। तो मैं सुबह आई गेस जहाँ पे मैं मेरा कैमरा बंद हो गया था, आई गेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू चूज़ योर मोटरसाइकिल इन केस यू आर प्लानिंग टू बाई वन। मैंने जब ये बाइक लेने का सोचा था, मैंने बहुत सारे बाइक्स को शॉर्ट लिस्ट किया था इन द सेंस के आई वाज recommended the Dominar 250. Someone said me Husqvarna 250, which was clearly not my option because that has got a 9.5 liters टंकी एंड उसमें पीछे लगेज क्या ही बांध सकते हो, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत करने के बाद, मुशक्क़त के बाद शायद आप उसमें लगा पाओगे। आई एक्सेप्टेड ऑल द ऑप्शंस एंड ऑल, नॉट दैट आई टेस्ट रोड अ लॉट बिकॉज मेरे लिए ऑलरेडी डिसीजन वॉज मेड दैट आई वुड बी गोइंग फॉर दिस बाइक. And I did my research on YouTube. He spoke with a friend who works with KTM and he also said that देख भाई बाइक तो सही है but बिकती कम है because everyone is after 390 adventure. That's exactly what I want you guys also to follow because what happens is you get confused otherwise. तो मानो कि आपको कुछ एक आपने बजट सेट कर लिया कि मेरे को इस बजट में आपको बाइक लेनी है, देन आप देखोगे उस बाइक में कौन कौन से ऑप्शन उस बजट में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं बाइक वाइज. उन बाइक्स को शॉर्ट लिस्ट करो, फिर उनके वीडियोस देखो, ऑनलाइन वीडियोस देख के आपको आइडिया लग जाएगा. तो आपने वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि मेरे को ये बाइक देखना है, आपने देख लिए वीडियोस, आपको आइडिया लग गया कि इस बाइक का ये प्लस है, ये माइनस है, ये पावर है, ये वो है. अब जाके हर बाइक को टेस्ट राइड करो. इफ़ देयर आर वे टू मेनी ऑप्शंस फॉर यू, उस सारे बाइक्स को टेस्ट राइड करो एंड देन ट्राई टू सी विच बाइक इज़ द वन दैट यू आर कनेक्टिंग विथ. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग टू अ पॉइंट वेर यू आर फोकस्ड, लाइक आई वाज फोकस्ड ऑन गेटिंग दिस वन ओनली. देखो कि आपके वेट के अनुसार, आपके राइडिंग स्टांस के ऊपर, आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर, लाइक इफ़ यू आर नॉट इनटू टूरिंग देन देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉर अ टूरिंग ओरिएंटेड और touring specific motorcycle. If you are just a commuter going from point A to point B, then choose according to that, then your weight, your height. So the best thing is to test ride yourself and then check as per your height, as per your weight, which one is the best for you. Simply go for that. इसमें आपका confusion दूर हो जाएगा कि यार इतने सारे options है, किसके साथ जाओ and all that. That's exactly what I did with my ADV 250 and boy I'm happy. So that's all I wanted to tell you guys as a guidance when it comes to buying a motorcycle, be that a scooter, a motorcycle, even a cycle, a car, everything. This has been my golden rule. मेन जो मैं कहना चाहता हूँ, खाली YouTube वीडियोस के ऊपर भरोसा करके मत जाओ.